Good afternoon, students. Today we are going to discuss sex determination topic of chapter 5, biology. Yesterday also we have introduced this chapter and this topic, and we have discussed that H. Hanking was the scientist who discovered this in 1891 while studying the spermatogenesis of bass. He found particularly a nuclear structure which was in the half of the sperms, and half of the sperms were devoid of this structure. They do not have that. So he gave that structure X body, name X body, and later on this X body was being given name as X chromosome. T.E. McClung also made extensive observation in the spermatogenesis of grasshopper, and X body was involved in the sex determination of sex. E.B. Wilson noted that the females of Ortinol have 7 pair of chromosomes, the males have 6 unpaired chromosomes. So X chromosome and this is called X0 type of sex determination. Heterogametic males are there in the insects. Both wasp and grasshopper are insects, and we see that in insects, heterogametic males are there. That means male produce different types of gametes. Because they are X0 type, they have only single unpaired X chromosome in there as the sex chromosome, whereas female have paired X chromosome. So XX, X0 type of sex determination it is called. Half of the sperms have X chromosome and half are without that. Only autosomes are there. So it's called zero type sperm. And then there is another case like us, human. In human also males are heterogametic. Humans में भी सेक्स क्रोमोसोम जो मेल होते हैं उनके दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है. फीमेल्स होमोगैमेटिक है, चाहे इंसेक्ट्स में हो चाहे हम में हो, दोनों एक्स पेयर ऑफ उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम है, एक्स एक्स. नाउ हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स जो हैं वो कुछ एनिमल्स में हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स भी होती हैं, जैसे बर्ड्स, उनमें ZZ टाइप का इनहेरिटेंस आता है. यहाँ पर आप देख रहे हो XX X0 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. प्लांट्स वेलिसिनेरिया, इंसेक्ट्स ऑर्डर ऑफ हेमियोप्टेरा ऑर्थोप्टेरा, फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम है XX टाइप के, मेल्स ओनली हैव 1 X क्रोमोसोम एंड इट्स कॉल्ड X0. तो मेल 2 तरीके के इक्वल अमाउंट में स्पर्म बनाएगा, one with the X chromosome, other half without X chromosome. Presence of unpaired X chromosome determine therefore जो भी sex of individual heterogametes बनाएगा, यानी कि उसके gametes different होंगे, वही determine करेगा कि offspring का sex क्या होना चाहिए. आगे हम देखेंगे तो it will be XXXY type found in mammals including human, insects like Drosophila, and in certain angiospermic plants. Melandrium, Humulus. इन plants में और humans में भी जो females होती हैं वो XX type की होती हैं, जो males होते हैं वो XY type के होते हैं. Females are producing homomorphic X chromosomes they are having, so they are producing homogametes. Males are having heteromorphic chromosomes, one is X bigger chromosome and one small Y chromosome. ह्यूमन का कैरियोटाइप आप देख रहे हो तो आप 22 पेयर ऑटोसोम देख रहे हो. लास्ट पेयर अगर मेल है तो XY रहेगा, जिसमें Y क्रोमोसोम बहुत छोटा दिखा रखा है. फीमेल है तो XX रहेगा, दोनों बराबर क्रोमोसोम. ये फीमेल्स का है, ये मेल्स का XY. Now, sex determination in Drosophila. Drosophila also have X and Y chromosome in males. With females, it has XX chromosome. Drosophila में SRY gene नहीं होती to determine sex determination. Instead, they use ratio of X to the set of the autosome. One set plus 2 sets of autosome is a normal diploid male, and 2X plus 2 sets of autosome is a diploid female. The difference between sex determination mechanism come in the odd cases. अगर double XY individual has Y, so the male mammal
However, 2x plus 2 sets of autosome makes a female Drosophila. X0 individual, only one X, no other sex chromosome, but otherwise diploid, is a female mammal, no Y. But a male Drosophila, 1X plus 2 sets of 2 autosomes. Now, Z0 ZZ system found in certain moth and butterfly. तो Z0 ZZ moth और butterfly में मिलता है. इसमें female possesses single Z chromosome in its body, hence called Z0. heterogametic है female इसमें. तो सारे insects में भी males heterogametic नहीं होते. moth और butterflies में females Z0 बना रही है. उनमें heterogametic females हैं. Produce two kinds of eggs. Male possesses 2 Z chromosome referred to as ZZ. Produce one type of sperm. The sex chromosomes of the offspring depend on the kind of egg. Now ZW and ZZ ये birds में जैसे यहाँ आप hen देख रहे हो, तो female hen में different तरह के sex chromosome है, means it is heterogametic. Female is ZW, the male is ZZ. Female has one Z and one W chromosome, so it produces two types of eggs. Male have two homomorphic Z chromosomes. Sex of the offspring depend upon the kind of the egg. The female is determining the sex. इस तरीके से आपने देखा ये तीन ही आपके सेक्स डिटरमिनेशन के मैकेनिज्म है. और अब मेल हैप्लॉइडी और हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म दिखा रखा है. ये भी आपकी बुक में दिया है. हनी बी का सप्लीमेंट्री मटेरियल में था, पर अभी आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि हनी बी में किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है. हनी बी क्वीन जो होती है वही सिर्फ डिप्लॉइड होती है. 32 क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं. दो तरह के एग्स वो बना सकती है. fertilized egg diploid zygote having 32 chromosome and unfertilized egg haploid zygote having 16 chromosomes develop into male. अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड और जो जाइगोट होता है वो मेल में डेवलप हो जाता है. उसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं. अनफर्टिलाइज्ड होता है. जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, वो फीमेल में डेवलप होती है. यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि फीमेल इज हैविंग 32 क्रोमोसोम. ओरिजिनली पेरेंट है वो, उसमें डबल सेट है क्रोमोसोम का, 16 का पेयर यानी कि 32. मियोसिस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, हाफ हाफ हो गए. तो मियोसिस के वक्त दो गैमेट्स बने विद 16 क्रोमोसोम्स. एंड अगर वो खुद पार्थेनोजेनेसिस से 16 क्रोमोसोम का ही एग अनफर्टिलाइज्ड ही वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हो जाता है, तो इट विल बिकम द मेल बी. मेल बन जाएगा. और फर्टिलाइज हो गया अगर तो 16 and 16 it will fertilize to become 32. फ्लो चार्ट इज गिवन इन योर बुक एज वेल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल हैप्लॉइडी का एग्जाम्पल आता है और पार्थेनोजेनेसिस का भी एग्जाम्पल बनता है और सेक्स डिटरमिनेशन का भी, कि अगर 16 क्रोमोसोम के साथ ही गैमेट डेवलप हो गया, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया और वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हो जाता है. एंड अगर जो फीमेल ने जो एग दिया है वो फर्टिलाइज हो गया मेल के स्पर्म से, तो वो 32 बन के फिर दोबारा से फीमेल बन जाए. तो इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन हमने पढ़ा. 3 का मेन है आपका कि आप ड्रोसोफिला का पढ़ोगे या इनका पढ़ोगे, हनी बी का ZW ZZ वाला पढ़ोगे जो आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है. हेन का, बर्ड्स का, कुछ प्लांट है फ्रेगेरिस इलेटी, और रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, इनका ZW ZZ होता है. यानी इनमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती हैं. फीमेल डिफरेंट तरह के एग्स बनाएंगी. हाफ ऑफ द एग्स विल हैव Z क्रोमोसोम इन देयर, वी कैन से हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट. गैमेट में Z जाएगा यानी एग में, और हाफ एग में W जाएगा. तो दो तरह के फीमेल एग्स बना रही है. तो फीमेल पे ही डिपेंड के एग पे ही डिपेंड करेगा कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल सारे स्पर्म Z तरह के ही बना रहे हैं. Z0 ZZ सिस्टम ये मॉथ और बटरफ्लाई में देखा जाता है. इसमें फीमेल में सिंगल Z क्रोमोसोम होता है उसकी बॉडी में और और वो हेट्रोगैमेटिक होती है. तो हाफ ऑफ द एग्स विल हैव Z and half will have no sex chromosome. Male produces 2 Z chromosomes,
So male इसमें homogamitic है. Homogamitic means or individual which is producing two same kinds of gametes, all the gametes of same kind, not two but all the gametes of same kind. So ZZ होने की वजह से जो मेल होंगे उसके सारे स्पर्म में Z क्रोमोसोम तो होगा ही, बट फीमेल के एग्स में आधों में Z होगा, आधों में जीरो होगा. इसे ZZ और Z0 सिस्टम बोलते हैं, जिसमें फीमेल हेटेरोगैमेटिक है. देन सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला में XY और XX टाइप का है, जो हमारे अंदर भी है. द मेल्स आर XY, जिसमें एक लॉन्ग X क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम शॉर्ट होता है, और मेल्स की जो लेंथ होती है बॉडी की वो भी स्मॉल होती है. फीमेल्स ज्यादा बड़ी होती हैं और उनके अंदर XX यानी होमोगैमेटिक उनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन होता है. ह्यूमन कैरियोटाइप में देखेंगे तो हमें भी XX और XY टाइप का होता है. फीमेल्स आर होमोगैमेटिक XX. All the eggs will be containing the X chromosome, and the males will produce two equal amount quantities, or we can say two equal number of sperms, X containing sperms and Y containing sperms. XX XY टाइप में ये ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखा जाता है. इसमें फीमेल्स होमोगैमेटिक होती हैं, मतलब they have pair of X chromosome, and male heterogamitic है, they have XY क्रोमोसोम. हेट्रोगैमेट्स बनाएंगे XY क्रोमोसोम होने की वजह से. तो the sex of the child or embryo depend on the kind of the sperm which is fertilized. कौन से स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड. सो दिस इज XX XY. XX X0 सिस्टम होता है. दिस इज आल्सो गिवन इन योर बुक. इंसेक्ट्स में देखा जाता है, जिसमें वास्प आ सकते हैं, ग्रासहॉपर्स आ सकते हैं. यहाँ पर एक ग्रासहॉपर का ही आपको दिखा रखा है. तो इसमें XX और X0 है. XX तो फीमेल का है और X0 मेल का है, यानी कि मेल अपनी टेस्टिस में स्पर्म्स जो बनाएगा वो इक्वल क्वांटिटी के बनाएगा. हाफ विल कंटेन द X क्रोमोसोम, हाफ विल नॉट कंटेन एनी X क्रोमोसोम. इट इज X0 टाइप. एंड जो फीमेल होगी वो दोनों तरह के X क्रोमोसोम बनाएगी. X क्रोमोसोम मतलब वो सारे ही एग्स में X क्रोमोसोम को भेजेगी. तो डिपेंड किस पे करेगा? सेक्स ऑफ द चाइल्ड उस पेरेंट पे डिपेंड करता है. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो डिफरेंट हेट्रोगैमेटिक है, जो हेट्रोगैमेटिक है वो ही डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, because here the males are heterogamete producing. So this mechanism is male heterogamety. It's called male heterogamety, where the male parent is capable of producing two different kinds of gametes. And when in the case we have read X, we can say XY is also such case. X0 तो है ही, XY भी वो ही केस है जहाँ पर हमारा ह्यूमंस वाला, यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी ही होती है. फीमेल हेट्रोगैमेटी में एक तो फीमेल हेट्रोगैमेटी में Z0 वाला सिस्टम है जो बटरफ्लाई और मॉथ में देखा जाता है, और एक ZW वाला है. इन दोनों में फीमेल हेट्रोगैमेटी है. तो जो इंडिविजुअल पेरेंट इंडिविजुअल हेट्रोगैमेट्स होगा वही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड. दिस इज ओनली कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन. इज इट क्लियर? I hope so. It is clear. Yes, ma'am. I hope you are reading at your home and you are preparing for your upcoming exam, cumulative test. So fourth chapter will again come because it was not assessed. It was assessed online. The fourth chapter will again come in your cumulative test, and fifth chapter will come till the chapters आएंगे ना 2, 3 and 4. yes.
The fourth chapter will completely come again in this cumulative test. It will be in the month of August, and the fifth chapter will come till the topic of sex determination. Clear? मैम मतलब यूनिट टेस्ट में फिफ्थ भी आएगा सेक्स डिटरमिनेशन तक? यूनिट टेस्ट आएगा जिसमें फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर आएगा सेक्स डिटरमिनेशन तक. ओके मैम. मैम आप इसके क्वेश्चन शेयर कर देना प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के. Okay, I will share the questions. ओके मैम. This class is over now because it is one topic only we were discussing, the sex determination. Okay, so this is only the topic which will till here only it will be coming in the exam. You have to revise chapter 4 and you have to prepare chapter 5 till the topic sex determination. Okay, यस मैम. so I'm ending the class. ओके मैम.